Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm really sorry that this video got a little bit more delayed than it was. But I was occupied with a little more things in my life. But this video is finally here. We'll be talking about how to study for economics and how to do good in that subject. So our economics is distributed into two facts. One we have is macroeconomics and then we have is IED. We have different people who are, actually giving the examination for economics. One are students who have economics as the optional, like me, who are from humanities background, and some other are of commerce background who has economics as their compulsory subject. Okay, so we'll be talking about both the perspectives because I do have friends who are from commerce background. I know what their problems are, what things they go through, and I myself from a humanities background, so I also know what humanities students go through. Let's get into the video. Okay, so the first thing is economics is divided into two parts. One is macroeconomics and another one is IED, that is Indian economic development. Okay, now macroeconomics is completely based on concepts and आप कितना practice करते हो, and IED is completely based on आपको कितने facts याद हैं, आपको कितनी policies याद हैं, आपको कितने points याद हैं. ठीक है. Now the second point is मैक्रो इकोनॉमिक्स और आईडी में इतना डिफरेंस क्यों है. आईडी इज बेसिकली एन एडवांस वर्जन ऑफ what you have studied in class 10th, and macroeconomics is basically the basic version of what you will be studying when you will be applying for graduation in economics, अगर आपको economics में career pursue करना है तो. And in class 12th we have a combination of both macroeconomics and then we have this IED. ठीक है. Now we'll be moving forward on how do we actually study for economics. Macro के अंदर, okay, that's me, Diya Jain, saying that you do not require any NCERT when you are studying for macroeconomics because NCERT की macroeconomics makes no sense. मैंने पहले भी कहा NCERT is not a user friendly book, तो आपको रियलाइज ही नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आप एग्जैक्टली पढ़ने की कोशिश क्या कर रहे हो या वो बुक्स जो है वो आपको पोर्ट्रे क्या करने की कोशिश कर रही है. राइट, सो डू नॉट स्टडी फ्रॉम NCERT. तो अब हम किससे पढ़े? देयर आर टू पॉपुलर रिफ्रेशर्स विच आर देयर. वन इज संदीप गर्ग एंड वन इज जैन एंड ओरी. आई हैव ट्राइड बोथ एंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई बिलीव दैट जैन एंड ओरी इज मोर बेनिफिशियल. जैन एंड ओरी के अंदर जैन एंड ओरी काफी ज्यादा CBSE बोर्ड्स के माइंडसेट से बनी हुई है. वो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है, वो ज्यादा अच्छी होती है मेरे अकॉर्डिंग. स्टिल you have all the rights to choose whichever refresher you want. This is just what I am suggestion. Okay, now second is going to be solve all the backside questions of Jain and Uri. I'm talking about macroeconomics. ठीक है. macroeconomics के अंदर संदीप जो जैन एंड ओरी है उसके अंदर PYQs भी होते हैं, लाइक ईयर वाइज मेंशन्ड होते हैं कि ओके दिस क्वेश्चन केम एग्जैक्टली इन ईयर 2019, 2021, 2022. तो इट इज मोर बेनिफिशियल बिकॉज आपके साइड बाय साइड PYQs भी प्रैक्टिस हो रहे हैं. The third thing is last year papers. मैंने ये पहले भी कहा है, I have even showed you some clips जहाँ पे आपको economics नहीं, I mean overall बहुत सारे subjects के question papers मिल सकते हैं, but economics के तो आपको मिल ही सकते हैं because economics is more of a practical subject and a tactical subject जिसके अंदर आपको practice की जरूरत होगी. तो बहुत सारे papers CBSE की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वो सारे हो जाए then you can refer exam idea. देखो तीन चीज. सबसे पहला जैन एंड ओरी के सारे क्वेश्चन उस बुक के अंदर बैक साइड क्वेश्चन पेपर जो है, सैम्पल पेपर्स जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है, गाइड के पेपर्स जो है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो सब के सब सॉल्व होने चाहिए. उसके बाद आपके बोर्ड्स के जितने भी लास्ट ईयर्स के पेपर हैं वो सब के सब सॉल्व हो जाने चाहिए. जितनी भी लाइक आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आपने उतना कर लिया उसके बाद आपको कोई भी लिटरली कोई भी और पेपर उठाने की जरूरत नहीं है. बिकॉज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस फ्रॉम ए ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड मुझे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स में डर लगता था एंड मेरे स्कूल के अंदर जितने भी टेस्ट होते थे सबसे कम इकोनॉमिक्स के अंदर आते थे ना. आई वॉज ऑलवेज वरीड कि इकोनॉमिक्स में मेरा क्या होगा. ठीक है. एंड व्हेन आई यूज्ड ऑल दिस प्रैक्टिस आई रियलाइज दैट इकोनॉमिक्स वाज द ओनली सब्जेक्ट वेयर आई हैड द चांस टू स्कोर 100, like a clear cut 100. So this is actually beneficial. आप इतना कर लो उसके बाद कुछ नहीं आता. I know all my subjective questions were repeated. Like I can even figure out कि ये वाले questions कौन से question last year papers में आ रखे हैं. इतना करने के बाद I am guaranteeing you कि आपको question कहीं और से नहीं मिलेगा.
सीबीएसई सिर्फ अपना ब्रेन ऑब्जेक्टिव्स में यूज करता है, तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो भी सीयूईटी की भी बहुत सारे एंट्रेंस के वो आते हैं रिफ्रेशर्स, हम उनमें से भी कोई यूज कर सकते हो, बट ऑब्जेक्टिव्स ओनली नीड शार्प एंड काम माइंड टू सॉल्व। मैं ये वर्ड हमेशा एम्फसाइज करती हूँ जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ, दैट इज बीइंग काम, बीइंग इन योर सेंसेस। बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, देन इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी वेरी इजी टू क्रैक ना। प्रैक्टिस, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट्स क्लियर इन के बाद, इवन प्रैक्टिस इज अ पार्ट ऑफ दैट, बट ऑफिशियली अगर आपको प्रैक्टिस करना है कुछ चैप्टर्स में, सो ब्रॉडली आई रिमेंबर देयर इज नेशनल इनकम, देयर इज दिस फॉरेक्स जिसके अंदर बीओपी आ जाता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट बजट आ जाता है, एंड देन यू हैव दिस what is this money in banking, and you have determination of income output and employment. सबसे ज्यादा इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर मार्क्स का था हमारे टाइम पे, बट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर अगर आपको मनी एंड बैंकिंग आता है। तो अगर आपको बेसिक्स ऑफ कॉमर्स आता है तो इट इज वेरी इजी, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस, फॉर्मूलाज, मैथ्स आपको नेशनल इनकम में बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज नेशनल इनकम इज द ओनली सब्जेक्ट जिसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज हैं, जिसके अंदर आपको बेसिक समझने की जरूरत है, बिकॉज वो शायद एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट नया होता है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, इट विल नॉट बी अ मेजर डील फॉर यू। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स फ्रॉम फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, बिकॉज वो ही सारी चीजें पढ़ते हैं और वो उनको एक मैक्रो लेवल पे अप्लाई करते हैं। तो जब चीजें मैक्रो लेवल पे अप्लाई होती है वो थोड़ी ज्यादा ईजी हो जाती है, ठीक है। सो नो नीड टू वरी फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा इन नेशनल इनकम, फॉरेक्स। I'll tell you that while I was preparing, मैं जितने भी ज़्यादा previous year questions solve करती थी, I would score full in all the other chapters except for forex, and it was my luck or what I would say. I did, मैंने 1 से 2 दिन की मेहनत करी थी फॉरेक्स पे, लाइक मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, सिर्फ लाइक देयर वर डेज व्हेन आई यूज्ड टू जस्ट सॉल्व एडवांस पेपर्स ऑफ फॉरेक्स, बिकॉज मुझे लगता था कि मुझे फॉरेक्स नहीं आता। और मेरे टाइम, मेरे एग्जाम में तो the most easiest kind of objective came, which made no sense. So I hope you guys get that luck. So forex पे ध्यान देना, national income में ध्यान देना, otherwise macro is easy. Next we come to is IED. IED for humanity student is the most easiest part because you get to मिक्स एवरीथिंग। आप जो हिस्ट्री में पढ़ के आए, जो ज्योग्राफी में पढ़ के आए, वो सारा आप मिक्स करके इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होते हैं। तो आईडी इज वेरी इजी, बट फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड इट इज नॉट रियली, बिकॉज दे आर नॉट अकस्टम टू थ्योरी क्वेश्चंस, राइट, थ्योरीज एंड ऑल। वो सिर्फ बीएसटी में ये सारी चीजें पढ़ते हैं, सो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बट आईडी में वील फॉलो माई ओल्डर मेथड, जो मैं फर्स्ट वीडियो से आप लोगों को बता रही हूँ। 1, मेक फैक्ट शीट्स, 2, मेक आंसर्स इन पॉइंट। आईडी के अंदर आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, तो फैक्ट शीट हाथों हाथ बनाते रहना, इट विल बी इजियर फॉर यू टू कंपाइल लास्ट मोमेंट पे एंड एक्सप्लेन करने को, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपका रिफॉर्म्स वाला, वो बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, काफी क्लियरली एंड इजीली अंडरस्टैंड करके देन उसके आगे प्रोसीड करना, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेडनेस लगती है, लोग बहुत ज्यादा मिक्स भी हो जाते हैं इस चीज के अंदर, तो उसको पॉइंट वाइज बनाने की कोशिश करना। एंड इवन फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यू विल बी टॉकिंग अबाउट बिफोर एग्रीकल्चर सेक्टर बिफोर इंडिपेंडेंस, देन 1951 से 1991 तक, देन ग्लोबलाइजेशन के बाद। तो एक सेक्टर को, दे आर 3 मेजर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। इन तीनों सेक्टर को अगर आप 1947 तक, 1947 टू यू नो व्हाट डू वी कॉल 1991 तक, 1991 के बाद का अगर आप 3 अलग अलग फेजेस में पढ़ लोगे, देन इट वोंट बी अ मेजर टास्क फॉर यू, ठीक है। आईडी के अंदर प्लीज डू नॉट यूज एनी रिफ्रेशर, प्लीज ओनली रीड फ्रॉम एनसीईआरटी रैशनलाइज्ड वाली। सीबीएसई के वेबसाइट पे जाओ एंड चेक आउट देयर रियल रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी, बिकॉज कभी कभी डेटाज एंड फैक्ट्स ऊपर नीचे हो रखे होते हैं उसके अंदर। नाउ डू यू हैव टू लर्न ऑल द डेटा? नंबर्स का डेटा नहीं याद करना होता, लाइक एग्रीकल्चर कितना था, कितने लोग काम करते थे, ओके दिस 100 पीपल, नो यू डोंट हैव टू लर्न दैट, यू जस्ट हैव टू नो कि ओके हाईएस्ट शेयर इन जीडीपी कौन से सेक्टर का था, कितना था, वो नहीं याद करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इट वाज ऑफ एग्रीकल्चर, देन इट वाज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, देन इट वाज ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो आपको ये सारी चीजें बस याद करनी है, ये नहीं याद करना है कि कितना परसेंटेज था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, तो लाइक द नंबर्स यू डोंट हैव टू लर्न, ऑलराइट। देन जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस होते हैं आईडी के अंदर, आई डोंट नो कॉमर्स स्टूडेंट्स को अगर इनका ज्यादा आइडिया है, बट ह्यूमैनिटीज वन, यू नो दिस एक्स्ट्रा बॉक्सेस कितने सारे होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज एमसीक्यूज इसके अंदर से काफी ज्यादा बनते रहते हैं। उनको प्लीज मत मिस आउट करना, प्लीज मत मिस आउट करना, याद रखना, ओके। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड व्हेन इट कम्स टू हाउ टू स्टडी फॉर इकोनॉमिक्स।
as such I cannot teach you कि पढ़ना कैसे है, because सबकी अपनी अपनी पढ़ने की स्टाइल होती है. बट नोट्स कैसे बनाने, एग्जाम्स को किस माइंडसेट से लेना है, एंड क्या क्या चीजें कवर करनी है, मैं ये सारी चीजें बता सकती हूँ. दैट दिस सीरीज इज बेसिकली अबाउट हाउ टू स्टडी, व्हाट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर टू बी स्टडीड. एंड इसी का सीरीज 2 विल कम व्हेन हम बोर्ड्स के नियर आ जाएंगे, जब आप लोग के बोर्ड्स चल रहे होंगे, हम उसके दौरान उसके पास आ चुके होंगे. तो आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो जहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि हर एक सब्जेक्ट के पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं. बिकॉज इवन इफ आपको सब कुछ आता है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ 95% एंड अ पर्सन स्कोर अबव 98 इज दैट वो एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है एग्जाम में, उनका क्वेश्चन के पीछे आंसर लिखने का माइंडसेट कैसा होता है, ये सारी चीजें. तो जब इसका पार्ट 2 आएगा, बिकॉज लकीली unfortunately whatever phrase you want to use, मेरे पास मेरी इकोनॉमिक्स की मार्कशीट है. सो आई विल बी इवन गिविंग यू अ लाइव proof of how to actually attempt paper. And one of the reason I am not doing in this video is क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज है आप लोगों के लिए एग्जाम को समझने के लिए, ठीक है. बिकॉज जब तक आप उस एग्जाम तक आओगे आपके अंदर इतनी सारी चीजें भर चुकी होंगी कि आप बेसिक पॉइंट्स भूल जाओगे, ठीक है. सो इसलिए आई एम नॉट शेयरिंग इट राइट नाउ, बिकॉज एक बार मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस पता हो, तुम लोग को सारे कॉन्सेप्ट्स पता हो, तुम लोग को सारी चीजें पता हो कि कौन से कंसेप्ट के अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक के, ये सारी चीजें जब पता होंगी एंड तब मैं तुम लोग को ये बताऊंगी कि ओके नाउ वी विल इम्प्लीमेंट इट ऑल. लाइक एक बार लॉ फॉर्म होता है उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, वैसे ही एक बार बेस फॉर्म हो जाएगा एंड देन वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट, सो वी विल गेट द बेस्ट रिजल्ट. सो इसीलिए मैं अभी शेयर नहीं कर रही. स्टिल अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, यू जस्ट आइदर मेल मी डाउन, नहीं मेल नहीं करो यार, you just comment it down below this video and I'll try to solve it. And any other suggestions for any videos you have, so just comment it down. I would love to continue YouTube if I get the amount of love that I'm getting right now. I like it a lot. I mean, you people are loving my jobless wali series a lot. But don't worry guys, I'll get a job ASAP. Do like, share, subscribe. Bye guys. Good luck.